Welcome to Happy Candles Investment. This is a video just for educational purpose where I am going to tell you how the trend lines and parallel channel works. Please don't treat this as a buy or sell call on Nifty. Anyway, this is a chart of spot Nifty, not Nifty futures. And we are going to study how the parallel channel works. So if you can see here, this parallel channel has been drawn. ये parallel channel बनाई गई है डेली कैंडल्स पे ऑन डेली कैंडल्स ऑफ निफ्टी। और अभी जो निफ्टी है वो लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है। एक पैटर्न है जो कि बहुत ही नेगेटिव पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना था और फिर वहाँ से निफ्टी लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही है, जो कि बहुत नेगेटिव पैटर्न है। जब मैं इसको इसके टॉप्स कनेक्ट करता हूँ एंड व्हेन आई कनेक्ट द बॉटम्स, व्हेन आई कनेक्ट द टॉप्स एंड द बॉटम, द ट्रेंड इज मीटिंग एट 23201। सो 23201 निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 23201 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी if Nifty is not able to sustain today's low, that was 23816. 23816 is a very good support for Nifty. आज हमने आवरली अगर मैं ये चार्ट लगाऊं तो हमने देखा कि 23816 से निफ्टी क्लोज एट 23995. So it was a fantastic comeback for Nifty from this level. So I hope and wish that 23816 level holds for Nifty. But if this level is broken, the next support level will be at 200 days EMA, and 200 days EMA is 23502. So the range between 23816 23502, एंड फाइनली अगर हम ये देखते हैं, ये बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं और ये टॉप्स को कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट द टॉप्स एंड द बॉटम, द ट्रेंड इज मीटिंग एट 23201. So 23201 is also a pretty good support for Nifty. And one more thing I would like to show that weekly 50 weeks EMA is also present around 23205, which is very near the 23 near the zone where the two trend lines are converging. So 23200 looks like the worst case scenario right now, if not 23816 or 23502. If 23201 is broken, I have some bad news for you. Then the Nifty can fall further down to 22820. I think in that case, maybe DIIs which are holding the market might also want to sell. And if by chance, it does not look likely, but if 23816, 23502, and 23201 is broken, then the Nifty can, go back a lot. It can go back to the lows of June, that is 21302 or 21825. But this is not looking likely because there are three major supports. One channel bottom support and 200 days support is near 23500. You can see here. So there is a dual support over here. Plus there is a trend line support at 23816. So I hope we can see reversal tomorrow from this level. If not, 300 points or 400 points below is 23502 level. But the most important level for me is 23201. If this is broken, then all hell can break loose. uh, on the upper side now, the resistances for Nifty will be at 24320, 24506, and 24721. If 24721 is crossed, we can see a good move in Nifty. Bulls can come back and take Nifty to 25k levels. Perhaps they can even take Nifty to the levels of 25,600. And if we can get a closing about this level, then it will be a complete U-shaped recovery on cards, and we can see the levels of 26k back within a month or couple of months. So very important levels for today are 23816,
23502. 23502 is father line, which is also coinciding with चैनल बॉटम. चैनल बॉटम है और फादर लाइन है यहाँ पे. तो यहाँ से कुछ ये जो जोन है बिटवीन 23816 और 23201, यहाँ कहीं से मैं रिवर्सल हो सकता है ऐसी आशा रख रहा हूँ. आप देख सकते हैं कि निफ्टी एक ऐसे जोन में है अभी, आरएसआई निफ्टी का, जो कि आप पिछला काफ़ी टाइम देखो तो पिछले नवंबर में एक बार यहाँ पे, या अक्टूबर में एक बार निफ्टी इस लेवल पे गई थी. मतलब एक साल में कभी निफ्टी का आरएसआई सिर्फ पिछले एक साल में सिर्फ एक बार, जो कि अक्टूबर में यहाँ पे इतना लो गया था, राइट. अभी निफ्टी का आरएसआई जो है उससे थोड़ा ही ऊपर है. तो आरएसआई के बेस पे भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड नहीं है. पिछले एक साल में तो नहीं रहा है, तो हो सकता है हम यहाँ कहीं से एक बाउंस देख सकते हैं. वी कैन सी अ बाउंस बैक इन निफ्टी somewhere in this zone. Probably it has made a bottom at 23816. Exact bottom और exact top बताना थोड़ा मुश्किल होता है. So we cannot say where the exact top and exact bottom is. बट 23816 या फिर 23502 और इवन 23201 seems to be where I see the market making a bottom. It was selling across the board for Nifty today, and I don't think any sector was spared. So it was selling across the board. एंड हम देख सकते हैं कि किस तरह से आईटी के कुछ काउंटर थे, टेक महिंद्रा और एफएल वगैरह, जो कि थोड़ा एचसीएल टेक वगैरह जो थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे निफ्टी को. अदरवाइज इट वाज ऑल सेल. देखिए, व्हेन यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं जब पूरा मार्केट गिरता है और मेरा पोर्टफोलियो गिरता है, तो मैं इतना नहीं घबराता हूँ. हाँ, मार्केट जब बढ़ रहा हो और हमारा पोर्टफोलियो स्टैग्नेंट रहे, या मार्केट बढ़ रहा हो और हमारा पोर्टफोलियो गिर रहा हो, देन दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट, राइट. जब पूरा मार्केट टूटेगा, पूरा मार्केट गिरेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी कुछ ना कुछ हद तक डैमेज होगा. और एक बात और समझ लो कि अगर मार्केट से गिर रहा है 300 पॉइंट या 1.27%, राइट, और आपका पोर्टफोलियो 1% या 1.2, 1.3, 1.4 के आजू बाजू गिर रहा है ना, नॉट लाइक 2.53 और 4%, तो आप समझ सकते हैं कि यू आर मैनेजिंग द शो वेल. जब मार्केट 1% बढ़ता है और आपका पोर्टफोलियो 1% या उससे अधिक बढ़ता है, तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब. तो डोंट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट कि भाई मार्केट टूटे और मेरा पोर्टफोलियो नहीं टूटे, ऐसा तो हो नहीं सकता है. अगर जितना मार्केट टूटता है, जितने परसेंट में मार्केट टूटता है, उसके आजू बाजू अगर आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है, तो यू नीड नॉट वरी अ लॉट. इट इज़ अ सेलिंग ओवरऑल, सेलिंग थ्रू आउट. ऐसे फेजेस आते हैं, देखो जब रैली आती है तो ऐसे फेजेस भी आते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो मार्केट से ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसे फेजेस भी आएंगे कि मार्केट टूटेगा और हमारा पोर्टफोलियो भी टूटेगा. इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी. जैसे हम सांस लेते हैं और हमारा स्टमक एक्सपांड होता है, जो और सांस छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे लंग्स, हमारे स्टमक, सब कुछ. उसी तरह से मार्केट भी सांस लेता है, मार्केट भी सांस भरता है अपने आप में. थोड़ा ओवर इन्फ्लेट भी हो जाता है, कभी कभी अंडर इन्फ्लेट भी हो जाता है. तो दिस माइट बी द राइट टाइम टू पिक अप good fundamental stocks which have given good result and have good fundamentals for a long term. यहाँ से थोड़ी बहुत खरीदी शुरू की जा सकती है. इफ़ वी सी अ बॉटम अराउंड दिस रीजन, तो फिर आप थोड़ा और खरीदी कर सकते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ घूमे. याद रखिए, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ. गिरते हुए स्टॉक मत पकड़ो, ऐसे स्टॉक पकड़ो जो बॉटम बना के बाउंस करने की कोशिश कर रहे हो, और खास करके 50 और 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कर देने की कोशिश कर रहे हो. ऐसे स्टॉक्स आप पकड़ोगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, देन आई थिंक यू विल मेक अ गुड मनी. जो गुड अपॉर्चुनिटी, अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है, इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स.
सब पैसे एक साथ मत डालो, टुकड़ा टुकड़ा करके डालो, बिकॉज वी डोंट नो वेयर द एग्जैक्ट टॉप एंड एग्जैक्ट बॉटम इज। जैसे मैंने कहा कि या 23,800, 23,500 या 23,200, ये तीन लेवल लग रहे हैं। अगर 23,200 का लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी में और 1,000 पॉइंट या उससे ज़्यादा भी गिरावट आ सकती है। बट राइट नाउ pretty strong support at 23,800, 23,500 zones, और 23,200 पे भी अच्छा सपोर्ट है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे इन्वेस्टेड, से इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसे उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं, और थोड़ा सोच समझ के पोर्टफोलियो रोटेशन का ट्राई करना। जब आपको लगे कि कौन से सेक्टर्स, अभी नया जो अप मूव आएगा उसमें कौन से सेक्टर्स, हो सकता है कुछ सेक्टोरल रोटेशन हो, तो उस पर आप सेक्टोरल इंडाइसिस पे भी नज़र रख के आपका इन्वेस्टमेंट चेंज कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा शफल कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। Keep strong fundamentals and keep the companies which have given good result in focus. That's it for now. Happy investing.